you. Okay, we're going to start our today's lecture. A very warm good morning to all present here again. We gather here today to increase our knowledge regarding a very sensitive topic, gender equality and women's human right on this online wonderful platform. I hope this will be a very interesting and meaningful for all of us. As we all know that it is at the very heart of human rights and any country's values. Gender equality is not only a fundamental right but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. So, today we have a chance to learn so much regarding this topic from our respected speakers. So, I extend my cordial greetings to our today's special guest, Dr. Arun Kumar, Chairman of Dignity Restoration and Grievance Settlement Association, a non-government organization with Delhi government to work all over the India to conserve the human rights and human welfare. I also welcome our two other dignitaries, Ms. Madhubala, who is the Women President, Dignity Restoration and Grievance Settlement Association, and Secretary of Young Women Association running two big working women hostels in South Delhi. And Miss Preeti Pandya ma'am, who is the chairperson of CARE Center Himmatnagar and ex-member judge CDRF Gandhinagar, Gujarat. I welcome you all, sir and ma'am. I extend also my regards to our honorable principal, Mr. B.D. Diman sir, School of Pharmacy, Ms. Khushpal Kaur, Principal, Sardar Lal Singh Memorial College of Pharmacy, Head of the Department, Dr. Pooja Gulati ma'am, Dr. Inderpreet Kaur, Head of the Department of Law, Desh Bhagat University. So before inviting our dignitaries to speak up, I want to put some light on the Dignity Restoration and Grievance Settlement Association. So, students, it is the association that is known as Dignity Restoration and Grievance Settlement Association, commonly known as Dignity India, was registered on April 29th, 2011
as a non-government organization with the Delhi government to work all over India. It has now grown to become an umbrella body of more than 100 organizations in India, as well as more than 150 individual members. So, Dignity India is also a member of the Consumer Awareness Group of the Regulatory Authority of India, Bureau of India Standards, and other regulators, and is registered with income tax authorities for 12A benefits. The primary objective of Dignity India is to safeguard the rights of the Indian citizens. It also works to create awareness among the masses about their rights as a consumer, as well as work towards improving access to education for the underprivileged and ensuring that rights and privileges of senior citizens are not overlooked. It also steps in as a mediator between the consumers and corporate when the need arises. The organization has a website www.dignityindia.org where grieved citizens can register their complaints. It will then forward these complaints to the concerned companies and strive for a solution within a short span of time. Dignity India has resolved concerns of over 1,000 aggrieved consumers via counseling, license, mediation, and court representations. Dignity India, on its own, has raised and solved more than 50 consumer related problems in its short lifetime. The NGO has on a regular basis conducted and facilitated awareness and education programs across the country, whereby consumers are made aware of their rights and responsibilities. It has a vision and mission that all citizens should be aware of their fundamental rights and should be provided legal and technical support where necessary. It also plans to set up an advice, awareness, and complaint center in rural and semi urban areas. Since the inception, Dignity India has been funded by personal savings of the chairman and his team. So, Dignity India's team of experts are equipped to support Indian citizens in the consumer awareness and complaint redressal, digital literacy, environmental protection, waste and e-waste management, financial literacy too, health and hygiene, welfare of senior citizens, human rights, road safety, no tobacco movement, skill development, women empowerment, empowering transgenders, yoga and physical fitness. So, in the whole, this organization commits to provide comprehensive and holistic support through education, healthcare, skill training, and required programs for the upliftment of the marginalized society. Now, I request our respected principal sir to invite our first speaker and chairman of this association. Please, sir. Thank you very much. Very good morning to all who are present here. I, as a Mrs. Madhubala from gender equality is at the very heart of human rights in the country, fundamental of United Nations Charter. Adopted by the world teachers in 1935, it was decided the equal rights of men and women and protecting the
and promoting the women's human rights is the responsibility of all the states. Now, very good morning to all who are present here. I, as the principal of School of Pharmacy, welcome all the dignitaries. We invite our special guest, Dr. Arun Kumar, Mrs. Preeti Pandya, and Mrs. Madhukar of this Settlement Association. They have spared their valuable time to attend this meeting. As gender equality is at the very heart of human rights and country's values. This is the fundamental principle of United Nations Charter, which is adopted by the world teachers. In 1945, equal rights of men and women, protecting and promoting it is the responsibility of all of us. Women should not be discriminated. They have equal rights, and they can even go to higher posts. Now, I am telling the example of yesterday newspaper that women will never be discriminated. Central government of India has made a mind to appoint Chief Justice of India, the woman. It's a very achievement, very good achievement of central government. So this notion should be dismantled, as girls and women should be given equal rights, equal responsibility, equality, women rights. And now I would like to tell one thing: the fundamental principle of human rights, responsibility, laws and policies which prohibit the woman from equal access to land, property, and housing. It should not be like that. Economic and social discrimination results in fewer and poorer life choices for the woman, rendering vulnerable to traffic. Gender-based violence affects the woman globally. Their mindset, women rights defenders are ostracized by their communities, threat to religion, honor, and culture. Women's crucial role in peace and security seems to overlooked. So, some groups of women face compounded forms of discrimination due to factors as their age, disability, socio-economic status. Our main topic is gender equality, means the women should be as par with the men. They should not be discriminated. Now, first of all, I will elaborate a sketch of Dr. Arun Kumar, chairman of this organization. Dr. Arun Kumar, he has been awarded with so many reputed honors like Legend of India Award for Excellence. By Dr. Consumer Council Andhra Pradesh. Also awarded by Innovative Artist Welfare Organization 26 January 2017 at Ek Sham, Desh Ke Naam, Mumbai. And at the last, I will tell that Dr. to art skills and experience to next position and provide the benefit to society. He is social activist also, and who is a social organization that work towards consumer rights, human rights, and well-being of the society. So I would like Dr. Anu Kumar, please. Thank you very much. Thank you. आप सभी को नमस्कार. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का जो टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी, एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है. अगर हम पुराने सभ्यता तक जाएं, मतलब इतिहास में अपने जाएं, वुमेन्स
शुरू से भारत में पूजी जाती हैं। वुमेन्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। जितनी हमारी देवियां हैं उन सबकी हम पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता की वजह से आज वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होने लगे हैं। जेंडर इक्वलिटी एक प्रोसेस है जिसमें कि मैन और वुमेन को एक ही एक ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कानूनी रूप से भी, इकोनॉमिक रूप से भी, और जॉब्स में हर जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो आजकल धीरे धीरे शुरू हो गया है, हमारे देश में प्रधानमंत्री भी लेडी रह चुकी हैं, राष्ट्रपति भी लेडी रह चुकी हैं, हमारी फाइटर पायलट्स भी लेडीज हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये फील करते हैं कि ये जेंडर इक्वलिटी को होना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि वुमेन्स के ऊपर अत्याचार दो तरह से हैं। एक तो जो घरों में उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, और एक सोसाइटी में सड़कों पर जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जो घरों का अत्याचार है, इसका एक ही रेमेडी है कि वुमेन्स को अपने आप बोल्ड होना पड़ेगा। अगर हमारी नारी अपने आप को, अगर आप अत्याचार सहेंगे तो दूसरा आदमी अत्याचार करेगा, अगर आप सहेंगे नहीं तो दूसरे आदमी धीरे धीरे अत्याचार आपके ऊपर नहीं करेगा। ये धीरे धीरे जो हमारे अर्बन है, शहरों में जो लेडीज काम करती हैं या जो और वो सक्षम है, वो अत्याचार नहीं सह रही, वो उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लम उन लेडीज के साथ है जो सक्षम नहीं है, दोज आर नॉट एम्पावर्ड, और उनके ऊपर उनके घरों में अत्याचार किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। जैसे अभी ये 3 तलाक का मामला भी एक अत्याचार ही था, जो अभी खत्म हो गया है। पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुआ है, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें आपके धार्मिक को चीजें अटकी हुई हैं, अभी भी लोग अटके हुए हैं, टाइम लगेगा। लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो गया इस अत्याचार को खत्म करने का। दूसरा, सड़कों पर छेड़छाड़ और दूसरे किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी बहनें और माएं एम्पावर्ड हों, इतनी सक्षम हो कि साथ के साथ जवाब दे सकें। अगर वो साथ के साथ जवाब देंगी तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं, वो चुपचाप अगर गर्दन झुका के निकल जाएंगी, कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, डर के मारे घर से नहीं निकलेंगी, तो दूसरा आदमी की हिम्मत बढ़ती है वो अत्याचार करने की। ये एक जो सड़कों पर अत्याचार है, जो हम रेप वगैरह के केसेस सुनने में, ये विकृत मानसिकता के तहत हो रहा है। लोगों की मानसिकताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि वो कोई ना कोई इस तरह की हरकत करके अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता वो क्या प्रूव करेंगे अपनी गलत हरकतों को दिखाकर। क्या ये एक सभ्य समाज के लिए में जरूरी है या ये होना चाहिए? मेरा मत तो ये है कि ऐसी चीजों को हम ताकत से ही रोक सकते हैं। हमारी वाई नॉट वी गो टू पुलिस। अगर कोई लड़का किसी हमारी बहन या माँ को छेड़ता है या हमारी बीवी को कुछ कहता है तो हम पुलिस में क्यों नहीं जाते? नहीं जी, इसमें हमारी बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? छेड़ हो रहा है, उसकी बदनामी होगी या हमारी बदनामी होगी? बदनामी तो उसकी होगी कि जब उसको एक लेसन मिलेगा कानून के जरिए तो उसकी बदनामी होगी। कानून सक्षम है, लेकिन हमारे जो
जो समाज की वो है, उसने कानून को असक्षम बना रखा है। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मान लीजिए मेरा चालान होता है, मैं कहता हूं जी मेरा भाई डीसीपी है, आप चालान मत करिए। मैं किसी लड़की को छेड़ता हूं, मैं कहता हूं जी कमिश्नर मेरे को जानते हैं, आप नहीं पकड़िए। ये इन्फ्लुएंस, पैसा, जब तक हमारे समाज के मतलब कुप्रवृत्ति है, मतलब दिस इज ए saying in our society, unless that is stopped, we can't stop all these inequalities. I think आप लोग इस चीज से सहमत होंगे कि हमें पहले अपने आप की मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें अपने समाज की जो बुराइयां हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम एक चीज को ही खाली ठीक नहीं कर सकते, हम ये चाहें कि अपने घर के कोने को ठीक कर दे, नहीं होगा, हमें पूरे घर को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी मानसिकता के साथ साथ समाज की बुराइयों को भी खत्म करना पड़ेगा। हमें बुराइयों के साथ लड़ना भी पड़ेगा, तभी हम जेंडर इक्वलिटी को ला सकेंगे और अपनी जो मतलब लेडीज हैं या फीमेल जेंडर है उनको एम्पावर भी करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपको तैयार होना है लड़ाई करने के लिए। कोई अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय करता है, चाहे वो आपके घर में है या बाहर है, आपको उसको जवाब देना ही होगा। इसके बिना हमारे पास कानून खाली कुछ नहीं कर सकता। आप कानून कितने भी बना लीजिए, कानून एक सपोर्ट है, दैट इज अ सपोर्ट सिस्टम ओनली टू यू। उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, आपको कानून के पास जाना तो पड़ेगा। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको डॉक्टर को कहना पड़ेगा भाई मेरे पेट में दर्द है, तभी वो दवाई देगा ना। कि जी हम नहीं जाएंगे, हम कानून के पास भी नहीं जाएंगे, हम शिकायत भी नहीं करेंगे, हम घर में ही रहेंगे और हमें हर चीज चाहिए। क्या ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको कानून के पास भी जाना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद भी करना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी। नहीं तो आप हम और 20 साल भी ये कहते रहेंगे कि जी हमें इक्वलिटी लानी है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। घर में बैठ के हम अत्याचार को नहीं रोक पाएंगे। अगर हमें अत्याचार को रोकना है तो हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसी सबमिशन के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यू पीपल हैव प्रोवाइडेड मी अपॉर्चुनिटी so that I can come on this platform and express my views. Thank you very much. Thank you all for patience listening. Thank you. Now I request Madhu Balaji to come forward. आप सबको मैं तहे दिल से सबका वेलकम करती हूँ और जैसा कि अरुण जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा बोले हैं वो और काफी कुछ उन्होंने ऐसे मुद्दे और ऐसी चीजें हाईलाइट करी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एज अ कंज्यूमर एंड एज अ विमेन प्रेसिडेंट मैंने रियलाइज, पहली बात तो मैं विमेन प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं ले ली गई हूँ, मैंने अपना कंज्यूमर केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, तब जाके शायद अरुण जी को लगा कि ये मधुबाला को लेना चाहिए। एनी हाउ मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ फॉर इस प्लेटफॉर्म को मुझे देने के लिए। प्रिंसिपल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले मैं कहूंगी कि औरत और आदमी जो भी हो, हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, हमें एक दूसरे से दुश्मनी नहीं उतारनी है। वी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो पहला ये दिमाग में लाना कि हम एक इक्वालिटी पे लड़ रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में हम इक्वालिटी पे लड़ेंगे, पर कुदरतन जैसा कि एक औरत का एक बहुत ही उसमें सहनशीलता भगवान ने दे रखी है, एक जो सिक्स सेंस कहते हैं वो भगवान ने, वी आर ब्लेस्ड। द ओनली थिंग इज दिस कि हमें उन चीजों को अपने पास में सजोते हुए हमें अपने मुद्दे उठाने हैं। और कंज्यूमर जब से हम पैदा होते हैं, जब से
बच्चा हमारे पेट में आता है, हम कंज्यूमर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हकों का पता होना चाहिए, तभी हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है। जब तक हम औरतें, जैसे कि पहले होता था कि घर का एक छोटा लड़का भी अगर साथ में चल जाता, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि भाई हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, लड़का है, तो हम आगे चल पड़ते थे। तो पहली बात तो ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। खैर एनी हाउ, हमारे अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, बहुत ज्यादा लेडीज एम्पावर्ड हैं, वो अपने राइट्स भी जानती हैं, पर कई कई जगह बहुत ज्यादा वो मतलब रूड हो जाती हैं। कई जगह वो बहुत, हमें अपनी बात को कहने के लिए अपनी जो कोमलता है और अपना जो सहनशीलता, उसको रखते हुए, एक इंसान को इंसान मानते हुए अपना बात करनी है। पर एट द सेम टाइम, जैसे कि हमें भगवान ने भी कुछ ऐसे हथियार दे रखे हैं जो हमारे बगैर देखे हमारे पास होते हैं। हमारे पास जैसे नखून है, दांत है, चिल्लाना है, सब कुछ है। ये सब कुछ हमारे कुदरत ने हमें हथियार दे रखे हैं, पर इनका यूज तभी होता है जब हमें बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां पे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, हम रोज इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरीके से औरतों के जो राइट्स हैं, पहली बात, ऐसे कोई अगर बात आती है जो हमारे पानी सर के ऊपर से चला जाता है, तब हमें ये चीजें देखनी है और करना है। पर हमें हर बारी वो रानी की झांसी बन के तलवार निकाल के खड़े नहीं हो जाना है, ये मेरा सोचना है। पर मैं आपको एक अपना छोटा सा इसे जस्ट टू मोटिवेट कि हमारी अपनी औरतों को ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं, और हम ये बात रियलाइज भी करते हैं। और जहां जहां भी हम बैठते हैं, क्योंकि मैं दो बहुत बड़े हॉस्टल्स, वुमेन्स वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल हैं, विच इज हेडेड बाय द LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, मैं वहां की सेक्रेटरी हूँ। और मैं कम से कम 300 350 लड़कियां जो कि वर्किंग हैं, उनको मैं हैंडल करती हूँ। और मैंने देखा है कि इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में एक बड़ा, बिकॉज आजकल की मानसिकता लड़कियों की बदल चुकी है, वो इस कदर लिबरेटेड है कि वो ये भी नहीं समझना चाहती कि आप कौन हैं। पर अगर हम एज अ टीचर और हम एज अ इतने बड़े और एक्सपीरियंस होके अगर हम उनको अपने तरीके से मोल्ड ना करके उनका सोल्यूशन ना दें और उनको एक मतलब विप करें, उनको एक रॉड अपने हाथ में रख के उनको साथ, तो वो नहीं समझती हैं। यू हैव टू रैशनलाइज। तो मैं बेसिकली टचवुड, भगवान गॉड हैड बीन ग्रेट कि मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें कि मैं उनको ना समझा पाई हूं। तो दूसरों को समझाने के लिए सबसे पहले अपने आप को उधर रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ता है। और यही तरीका है जिंदगी में जीने का भी। पर किसी को भी अननेसेसरली अपने ऊपर रूल करने देना, गलत बात को जस्टिफाई होने देना, ये गलत है। तो हमें अपनी आवाज हमेशा ही मजबूती से रखनी चाहिए, हमें अपने मुद्दे मजबूती से रखने चाहिए अगर वो गलत है तो, पर इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि हमें रखने हैं। और जहां भी आप बैठे, आप लेडीज को, स्पेशली हमारे जो गांव में, वैसे तो जैसा अरुण जी ने कहा कि हमारी ऑलरेडी हमारी संस्कृति में औरतों को बहुत ज्यादा राइट दिए हुए हैं। और हमारी फॉर्चुनेटली हमारे किसी मतलब, जैसे कि आपको पता है कि गांव में एक मौसी या बुआ होती थी, वो पूरे गांव को हैंडल करती थी और बहुत रैशनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। आज भी घरों में ये है, दादी है, नानी है, पर आजकल की जनरेशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। हम लोग थोड़ा ज्यादा लिबरेटेड हो गए हैं और हम अपने लोगों को, बड़े लोगों को नहीं सुनना चाहते हैं, पर वो गलतियां भी हमारी ही हैं। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना है और अपने आगे अगर आने वाली जनरेशन को वो संस्कार नहीं दे सकते हैं तो कमी हमारे में है, उनमें नहीं है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आजकल का है। और हमें अपने राइट्स एंड अपनी जो लीगल राइट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर औरतों के तरफ सारे, हमने देखा है कि हर एक जगह प्रोविजन है। मैं प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा अभियान चला और इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, लोगों ने अपनी सेल्फी ले लेके भेजी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सब लोग ये चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं, अपनी बेटी को उतना प्यार देना चाहते हैं, और मैं तो कहूंगी सबसे बड़ी दुश्मन तो औरत की औरत ही है। तो अगर हम एक दूसरे को, स्पेशली सास बहू जो है, खैर वो कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे जा रहे हैं, पर रिस्पेक्ट,
और एक गुंजाइश अपने दिलों में, छोटों के लिए और बड़ों के लिए, और रिस्पेक्ट हो तो बहुत बड़ी चीज है जो हमें रियलाइज करनी चाहिए जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। और एक छोटा सा इंसिडेंट और बताऊंगी बिफोर मैं अपनी विराम दूं अपने बोलने पे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास में एक केस मेरे ऊपर आया कि मैंने एक फिएट गाड़ी ली थी, जिसका कि मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने मुझे गलत गाड़ी दे दी और 365 डेज के पहले ही वो पेट्रोल पीने लगी। तो मैं इसलिए ये एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि किसी भी, अगर आपके मन में ये है कि आपको किसी ने फॉर राइड लिया है या आपके ऊपर किसी ने गलत वो किया, तो आपके पास में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट में लड़ सके। तो अल्टीमेटली मैं कंज्यूमर में गई, कंज्यूमर के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद नेशनल कमीशन में गई, फिर स्टेट कोर्ट में गई, फिर नेशनल कमीशन में गई, और मेरा पूरा का पूरा रिवर्स मेरा कर दिया गया दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई आपका जो डिसीजन है अगर नेशनल कमीशन में खत्म हो गया है तो आपका केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लड़ सकता है। तो मैं फॉर्चुनेटली somehow I had the means, वैसे हर एक के पास ये मीन्स नहीं होते हैं, पर उस सुप्रीम कोर्ट में जाके फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर आई वन द केस एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, मधुबाला वर्सेस फिएट। ये आप उसकी वर्डिक्ट दे सकते हैं, नाउ उसका दिया जाता है, तो रेफरेंस दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, और हमने कई केसेस मैंने और अरुण जी ने हैंडल किए हैं साथ में मिलके, जो हमने इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस और ये काफी चीजों को हमने हैंडल किया है आप लोगों के साथ में। मैं बोलती हूँ कि अगर किसी वजह से भी आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप हमें अप्रोच करें, हमें लिखें, हमारी वेबसाइट है और हम आप लोगों की मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for these enlightening and knowledgeable talk. I hope everyone learned a lot from your words. Thank you so much, ma'am. Now, I invite our next speaker of today, Ms. Preeti Pandya, who is the chairperson CARE Center, Himmatnagar, and ex-member judge CDRF, Gandhinagar, Gujarat. Please, ma'am. Hello, everybody. Can I audible? Yes, ma'am. Yes, you are very much audible. Okay. Okay, thank you. जैसे ही आज का जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बारे में मुझे तो ये कहना है कि हमारे भारतवर्ष में तो वैदिक काल से भी महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। जैसे विदुषी गार्गी भी हुई है, लोपामुद्रा भी जैसी विदुषी भी हुई है। उस समय के बाद की बात करिए तो रामायण काल की बात करें तो रामायण में भी युद्ध भूमि में योद्धा के साथ जाने का अधिकार महिलाओं को था, और वो अधिकार उनकी सक्षमता पर निर्भर करता है, और सक्षमता तालीम से आती है। तो कहा जा सकता है कि जब कैकेयी दशरथ राजा के साथ युद्ध भूमि में गई थी और दशरथ को विकट परिस्थिति में से बाहर लेके आई थी, तो उस काल में भी महिलाओं का सम्मान होता था, इक्वालिटी थी और उनको सारे अधिकार मिले थे। लेकिन बीच में कुछ दौर ऐसा भी आ गया कि जहां महिलाओं को निम्न माना गया और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया। लेकिन उस दौर में भी महिलाओं ने अपने अधिकार और अधिकार के लिए खुद की हिम्मत और ताकत से उनका मुकाबला किया और अपनी आवाज उठाई। अगर मुगल दौर और राजपूताना दौर की बात की जाए तो रजिया सुल्तान भी हुई, अहल्याबाई भी हुई, कर्मा देवी भी हुई, जीजाबाई का भी उदाहरण लिया जा सकता है। वहां भी महिलाएं सक्षम थी। अंग्रेज शासन के दौरान भी कई महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर घर से महिला आई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो हम भूल ही नहीं सकते। और आज के जो भारत है, हमारा आजाद भारत जिसे हम कहते हैं, उसके तो संविधान में ही प्रावधान है इक्वालिटी का। तो आज ये मुद्दे पर बात क्यों करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई?
इसके लिए हमें हमारी मानसिकता को बदलनी चाहिए। आज भी छोटे गांव में ग्राम सभा होती है, वहां कानूनी प्रावधान के तौर पे सरपंच महिला हो सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। एज अ सरपंच डिसीजन नहीं ले सकती। सरपंच पति काम करते हैं। एक नया हुद्दा उत्पन्न हो गया है जहां सरपंच पति काम करते हैं। कई राज्यों में मोर और लेस गांव में तो महिलाओं को दिए गए संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो ही रहा है। उसमें भी आगे देखा जाए तो सिटी एरिया में भी ज्यादातर सभी जगहों पे किया जा सकता है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो, घर हो, बाहर हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है। हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रोटेक्शन की बात वहां होती है। उनको प्रोटेक्शन कहीं नहीं मिलता है, कहीं उनका पर दुराचार होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। तो हर महिलाओं को ऐसी कोई जगह पे अत्याचार हो रहा हो, इसके खिलाफ खुद को मजबूत करने की आवश्यकता है। और खुद को मजबूत कैसे कर सकते हैं? शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। अगर महिलाएं शारीरिक और मानसिक मजबूत रहेगी तो कोई भी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और आधी सदी बिता चुकी हूं एज अ महिला। एक छोटी सी मैं एक वाक्य मेरा बताती हूँ। हमें कोई ज्यादा सेल्फ डिफेंस के क्लासेस अटेंड करने की या ये वो करने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक तौर पे मजबूत होना है और उसमें हमारा परिवार ही हमें सपोर्ट कर सकता है। मैं एक मेरा वाक्य बता रही हूँ कि मैं अहमदाबाद से इंदौर जा रही थी। मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन समहाउ वो कैंसिल हो गया था, तो हमें जनरल कोच में जाना पड़ा और वहां काफी भीड़ थी। तो जनरल कोच में ऊपर का जो बर्थ होता है, जहाँ लकड़े की पट्टियां होती है, उसमें बीच में जगह होती है, तो वैसी पट्टी पे 5-6 लोग बैठे थे। मैं भी वहां जाके बैठ गई क्योंकि जाना जरूरी था। तो वहां नीचे बैठे हुए इंसान ने ऊपर ऐसा पकड़ के मुझे छूने लगा गलत तरीके से। एक बार मैं थोड़ा जगह चेंज की, क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी मुश्किलें थी, तो हो सकता है कि बाय फ्लूक हो गया हो। मैंने थोड़ी खिसकी थोड़ी इस साइड, तो मेरे पास वाले जो शख्स थे उन्होंने देखा कि नहीं ये महिला इधर खिसकी, तो फिर उसने दूसरी जगह पे हाथ लगाना शुरू किया। मैं वापस उस जगह और खिसकी, तो भी ये हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, उसका हाथ आने की वेट किया और मेरे पास सेफ्टी पिन थी। सेफ्टी पिन आप सब जानते हैं ना, सिर्फ सेफ्टी पिन थी। सेफ्टी पिन निकाल के उसकी उंगली में जोर से चुभोई। वो खड़ा हो गया, क्या किया, ये क्या क्या? मैं, आप क्या कर रहे थे? फिर सारे लोग उस पर टूट पड़े और उसको नेक्स्ट स्टॉप पे कोच से बाहर निकाल दिया। ये हिम्मत होनी चाहिए। और उस वक्त मैं अकेले ही थी और कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर हमारी खुद की रक्षा हमें करनी है। तो क्यों कोई मेल को ये नहीं कर सकता, प्रताड़ित नहीं कर सकता, और वुमेन को ही क्यों कर सकता है? क्योंकि हम लोग खुद मान चुके हैं कि हम असक्षम हैं अपनी खुद की रक्षा करने के लिए। ये हमारे मन में जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है महिलाओं के, वो हमें निकालनी है। और हमारे घर की सारी महिलाओं की दिल में, दिमाग में जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो घर के सारे परिवार वालों को मिलके निकालना है कि नहीं, आप ये कर सकते हो, आप अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकते हो। उसके लिए रास्ते में तलवार और बंदूक लेके निकलने की जरूरत नहीं है। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई छेड़ता है, कोई बोलता है, ये सब गालियां करता है, ऐसे कोई बातें करता है, तो जोर से चिल्लाओ, ए! अगर ये बोल दिया तो दोबारा वो आप जाओगे तो नीचे मुंडी करके वो बैठ जाएगा, आपको छेड़ेगा नहीं। क्योंकि आप है बोलोगे उसके सामने देख के स्ट्रांग आई से, तो सारे लोग उसको ताकेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये मजबूत है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए।
जहां महिलाएं कमजोर रहेगी वहीं उसको छेड़ा जाएगा, वहीं उस पे आपत्ति आएगी, वहीं उस पे अत्याचार होगा। हमें खुद को मजबूत करना है। बस मुझे तो इतना ही कहना है कि हम अगर खुद सक्षम होंगे तो और कोई हमें कुछ भी नहीं कर सकता हमारी मर्जी के खिलाफ। नहीं तो नौकरी पे, नहीं तो व्यवसाय में, नहीं तो किसी भी जगह पे। अगर हम टेक इट इजी ले लेंगे कि नहीं हम तो महिलाएं हैं, हम तो बाहर नहीं जा सकती, हम तो शासन नहीं कर सकते, तो हमारे बदले हमारे पति ही शासन करेंगे, तो फिर वो ही करेंगे, वो ही करेंगे। अगर हम तैयार रहेंगे कि नहीं हमें ही करेंगे, गलती होगी तो भी हम करेंगे, सही होगा तो भी हम करेंगे, गलती से सीखेंगे सुधरेंगे, लेकिन हम ही करेंगे, तो फिर हम ही करेंगे। और ये खुद को भी बदलाव लाने की जरूरत है और सामने वाले की सोच में भी बदलाव अपने आप आ जाएगा। देखिए, जो आपने अनुभव किया होगा सभी लोगों ने कि जहां महिलाएं आवाज उठाती हैं, जहां महिलाएं स्ट्रांग है, उस महिला को कोई प्रताड़ित नहीं करता। जहां कुछ नहीं बोलती, सर नीचे झुका के चली जाती हैं, वहां पे उन पे अत्याचार होता है। घरेलू अत्याचार को या बाहरी अत्याचार को, वहीं ही होता है। एक्सीडेंट इज ऑलवेज एक्सीडेंट, बट टेक इट ग्रांटेड तो होना ही नहीं चाहिए। ये मैं स्ट्रांगली मानती हूँ और स्ट्रांगली मैं सभी महिलाओं को और यहाँ पे जो भी पुरुष वर्ग हैं उनको भी ये निवेदन करती हूँ, उनको भी ये विनती करती हूँ मैं कि आप अपने परिवार की सारी महिलाओं को सक्षम बनाए, मेंटली स्ट्रांग बनाए। उनसे आपका कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा, लेकिन आप भी सेफ हो जाएंगे, आपके घर की महिलाएं भी सेफ हो जाएगी। और ऐसे करेंगे तभी सारी महिलाएं सेफ हो जाएगी। तब इस टॉपिक पे, जेंडर इक्वलाइजेशन के टॉपिक पे और वुमेन सेफ्टी के टॉपिक पे हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही मेरा तो स्ट्रांगली कहना है। अगर मेरी बात ज्यादा स्ट्रांग लगी हो, कड़वी लगी हो, मीठी लगी हो तो माफी चाहती हूँ। और मुझे इस वेबिनार में इनवाइट करने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑर्गेनाइजर एंड अरुण जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for these really inspiring words. We all learn a lot from your words and lessons. Thank you very much, ma'am. हाँ जी Now- परम मैडम। हाँ जी Yes, परमजीत ma'am. मैडम। Yes, sir. Yes, sir. मैं 2-3 वर्ड्स आई वुड लाइक Yes, टू sir. Yes, स्पीक। sir. Definitely, sir. Definitely. Please. I am really indebted and thankful to all the speakers जिन्होंने मोटिवेट किया है। डॉक्टर साहब हैं, मैडमें हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर दिया लेडीज को। दे विल बी आल्सो इनकरेज्ड विद योर लेक्चर। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट। आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। मैं अपनी ड्यूटी से आई वाज गोइंग टू अंबाला, सूर्यबर्ड में मैं प्रिंसिपल था पहले पंजाब में। तो मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक हस्बैंड जो है वाइफ को पीट रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज वाइफ। मैं वहां रुक गया, लोग तमाशा देख रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया। मैं इमीडिएटली आई स्टार्ट माई कार, साइड में कार रोक के, और मैंने बोला भी क्या हुआ। डंडा उसके हाथ में था, वो रो रही है बेचारी और लोग देख रहे हैं तमाशा 5-6 खड़े होके। मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे वो लेडी पिट रही है बेचारी, उसको तो आप देख रहे हो, हस्बैंड मार रहा है, उसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। बाबू ये बहुत गंदा इंसान है, बहुत घटिया इंसान है, ये गुंडा है, फलाना टिंगड़ा। मैं गुंडे को तो मैं सदा करता हूँ। मैंने बोला मैं भी डोगरा हूँ जम्मू का, छोड़ूंगा नहीं इसको आज। मैंने क्या किया, उसको पकड़ा, मैं डंडा उसका छीन लिया मैंने उसके हाथ से। पहले तो इमीडिएटली थोड़ा लूज पकड़ा हुआ था, उसको पता नहीं था छीन लेगा जी। डंडा छीन लिया, उसने मुझे गाल निकाली। तेरी क्या लगती है जी? माँ मेरी बहन लगती है, और 10।
और कोई पूछना तूने क्या लगती है, मेरी बहन लगती है। सर लेडीज सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तेरी औरत इज्जत क्यों नहीं करता, शरेआम मार रहा है लोगों के सामने। उसने मुझे लात मारी, मेरे यहाँ नीचे लगी टांग में। मैं डंडा था मेरे हाथ में, डंडा मारा, उसकी पीठ के ऊपर 2-4 डंडे मारे। वो जो गाड़ी निकाले मुझे, तो कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो करो। फिर मैं पुलिस बाई चांस जिप्सी आ रही थी, मैंने रोक, उसमें जो एएसआई थे वो उसकी मिसेस पड़ी हुई थी मेरे से, फार्मेसी करी हुई थी उन्होंने वहां पर अंबाला में। वो नीचे उतर के आ गए, सर क्या हुआ, नमस्ते। मैं कहा ये हुआ। उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले जीप में डाल के, तब सीधा करा उसको, अपने आप ठीक हो गया उसके बाद। फिर वो तो कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये बताना चाहता था आपको। एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. Yes, sure. हाँ, अगर टाइम मुझे दिया जा सकता है तो मैं एक और वाक्य बताना चाहती हूँ। Yes, ma'am. Yes, sure. हाँ, जब मैं 19 साल की थी, 18-19 साल की, मैं सेकंड ईयर 3rd ईयर कॉलेज में थी, तब हमारे कॉलेज के में जाने के रास्ते पे ऐसे चौराहा होता था। वहाँ एक साइड बस स्टैंड होता था, एक साइड ऑफिस हमारी कॉलेज होती थी, और एक साइड वो लोकल टैक्सी वाले होते हैं ना, जो पैसेंजरों को ले जाते हैं, वो खड़े होते थे। और वो तो ड्राइवर, कंडक्टर्स और वो सारे वैसे शब्द ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी न्यूसेंस उसमें भी होते हैं। एक दिन मुझे लेट हो गया और मैं थोड़ा जल्दी में जा रही थी कॉलेज चल के। तो सामने से, मैं रोड की इस साइड पे थी, सामने से एक बंदा आ रहा था, और उसने मुझे जल्दी चलते हुए देख के सुपर फास्ट या डबल एक्सप्रेस या सुपर एक्सप्रेस या ऐसा कुछ कहा। क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ उसने मुझे ही कहा, ये मुझे समझ में आ गया। मैं रोड क्रॉस करके उसके सामने पहुंच गई। मेरे और उसके बीच 4 उंगली जितना भी अंतर नहीं था, वो मेरे सामने था। मैंने ऊपर देखा, स्टार्ट करके उसके चेहरे पे एक चाटा मारा, और वापस रोड क्रॉस करके मैं अपने कॉलेज चली गई। उस वाक्य के बाद ये हुआ कि जब भी हम लोग बस स्टैंड से कॉलेज तक पैदल जाते थे, तो उस जगह पे पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, कोई आवाज नहीं करता था। वैसे तो वो लोग बैठे बैठे बातें करते रहते थे, हमारा कोई लेना देना नहीं होता था उससे, लेकिन ये वाक्य के बाद मैं जब गुजरती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप डॉक्टर प्रिंसिपल साहब ने जो वाक्य बताया बहुत ही मोटिवेटिव था, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाया, वो कदम वो औरत को उठाना चाहिए था। हिम्मत कैसे करे कोई उसको मारने की? उसका डंडा छीन के उसको मारो, दोबारा वो आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, घर का हो या बाहर का, कोई भी व्यक्ति हो। थैंक यू। Thank you very much, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। आपके इंस्पायरिंग वर्ड से डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, हर एक ने कुछ ना कुछ सीखा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। Okay. Now, I cordially invite Dr. Shalini Gupta, Vice Chancellor Ma'am, Desh Bhagat University, to share her views with us. Please, ma'am. Thank you very much. Respected guests, dear students and faculty members, I'm really happy to be amongst all of you while you are discussing very important topic, and that is women rights and gender equity. Though you people have discussed many things, I will like to share just a few thoughts that I feel that women, they are the pillars of the society. And I will say that they are the born leaders. As many researches also, they depict the same, that women are the born leaders. They handle all the ups and downs of the life at the domestic front, and they also handle their professional duties too. So they are multidimensional in nature, I would say. The only thing required is to equip the women with the skills by upskilling them or by skilling them,
and by educating and taking the rural women into the mainstream. And finally, I understand that we need to change the mindset too. As a society, we have to change the mindset. I would like to share a few lines written by a male itself. That is the beauty of the poem. And I will share the poem with you. It's being screen shared too. I'll read it out. I hope that you will enjoy the same. With changing times, she redefined her role, added herself few more goals. Having been denied the chance to grow, she came out of shadow to show, to prove to and enlighten this world with her deeds, values, and word. With her, she has done her bit with her strength, hard work, and wit. Made great strides in every sphere, be it medicine, engineering, or healthcare. With her deed, she proved herself. With her deed, she proved herself to you, me, and to us all that she can do anything and everything, be proud, and stand just as tall. I hope that these lines, they depict many things about women, and I will congratulate Dr. Pooja Gulati, the team leaders, and the students, especially the guests of the day, being with us and sharing their thoughts. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, to support us. Your support means a lot to all of us. Thank you so much, ma'am. My pleasure too. Now, I request Dr. Pooja Gulati, ma'am, Head of the Department, School of Pharmacy, to extend a vote of thanks to all. Please, ma'am. Thank you, Paramjeet. Thank you, Vice Chancellor, our Vice Chancellor, ma'am, Dr. Shalini Gupta, for such an encouraging and motivational poem. To all the faculty members, guests, and the students who are part of this session. So it is a great honor for me to give vote of thanks on this occasion in which we are talking about gender equality and women rights. First of all, I would like to thank Dr. Arun Kumar, Chairman, Dignity Restoration and Grievance Settlement Association, Ms. Madhubala and Ms. Preeti Pandya for sharing their meaningful and inspiring words on women's rights and gender equality. I would also like to thank our Honorable Vice Chancellor, Ma'am, Dr. Shalini Gupta, to support all of us during our routine in our university. She always encourages, especially the women staff, for working hard, for doing something extraordinarily so that we can be a good role models in the society as well in the university itself. She always encourages women staff right from the class 3-4 employees to even directors, HODs in charges, for motivating them so that they can be the role models in the university as well as at their homes as well as in the society, wherever they are working, wherever they are going. So thank you all, and thanks all the faculty members and students to listen to the talk patiently and make this successful. And at the end, I would like to thank Dr. Inderjeet Kaur, HOD and Faculty of Legal Studies, for associating with this NGO so that we can work further with this NGO and for making the society a better place to live, which is safe and secure for women as well. So this expert talk is in collaboration with Legal Aid Club and with Women Driven Cell for working in this field, in this area, so that we can have a safe, healthy environment for the women
in the workplace, in the society, at homes, everywhere, wherever they go, wherever they work, wherever they work. So thank you all. And with this, I hand over this to now Ms. Paramjeet for Associate Professor. Go further. Go ahead. Thank you very much, ma'am, for your kind words. Now, here is the questionnaire section for all of us. If anybody want to ask any question to our experts, then they can proceed. If students have any question in their mind related to this topic, so this is your time now. So students and faculty members, anyone can ask the questions. Kindly ask their questions by put your mics on. I repeat, if anybody have any question in your mind, then you can ask from our today's expert. Any faculty member or any student can ask the question. No, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, Yeah, yes. certainly. Okay. Okay. Ma'am, according to you, feminism is a good thing or a bad thing? कि अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, इक्वल बात करते हैं, तो इट्स गुड थिंग और अ बैड थिंग कि हमें बिलीव करना चाहिए फेमिनिज्म पे और नहीं? आप किसको ये प्रश्न करना चाहती हैं? किससे ये आंसर पाना चाहती हैं? मैम आप प्लीज आप कर दो. मैं ही कह दूं। देखो, हर चीज के दो पहलू होती है, हर सिक्के की दो बाजुएं होती है। हेड और टेल दो होता है। हम हेड पे देखेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर टेल पे देखेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। यानी फेमिनिज्म अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी वो बहुत बुरी बात भी हो सकती है। बात यह है कि किस दायरे पे उसको देखा जा सकता है। अगर कोई डोमिनेटिंग है तो वो अच्छी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अगर इक्वालिटी के साथ अगर फेमिनिज्म है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें बोलना चाहूंगी, मैं जवाब दे सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. sure, Yes, sure, ma'am. ओके, फेमिनिज्म आप एक ये समझ लीजिए कि यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, बिल्कुल यानी सही है। कि सारी कायनात की खूबसूरती आपको हर तरीके से कोमल, हर एक तरीके से भगवान ने आपको इतने कारीगरी से बनाया है, उसको आपको सजोना है। तो फेमिनिज्म इज अ ब्यूटीफुल थिंग।
पर वो जो है, जो हम कंपटीशन में चले जाते हैं कि हम मर्दों से कम नहीं, गलती वहां हो जाती है। हमें अपना, जैसे हमारी जो हमें बताया जाता है, हम फूल के समान हैं। हमारी जब डिफाइन करते हैं तो हमें गुलाब का फूल फूल के हिसाब से, यानी कि हमें एक बहुत खूबसूरत एक जो एक फ्रेग्रेंस देती है, एक एनवायरनमेंट को अच्छा वातावरण देती है, एक और उसमें इतनी सेंसियसता कि वो एक बच्चे को पैदा करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि फेमिनिज्म को धरती का रूप दिया गया है। शिव जी को भी अगर अपनी शक्ति दिखानी थी तो वो भी एक औरत का ही रूप दिया था। तो आपको हर किसी की एक शक्ति बननी है, आपको अपने अंदर एक बहुत खूबसूरती जो आपको भगवान ने दी है उसको आपने सजोना है, और कभी मन में ये नहीं लाना है कि आप में कोई हीन भावना है। अरे आप तो सबसे एक तो बहुत बहुत खूबसूरत चीज बनाई है आपके। फेमिनिज्म इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट यू मस्ट रियलाइज कि फेमिनिज्म के साथ में आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आपको सबको लेके चलना है। जैसे धरती है, धरती के ऊपर हर कोई है, पर जो हल्का सा हिलती है तो सारी दुनिया हिल जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपकी सहनशीलता को बरकरार रखते हुए, अपनी खूबसूरती को लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं तो बेटा नैना, आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपका नाम भी बहुत प्यारा है, और आप प्लीज फेमिनिज्म बी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. Yes, sir. परमजीत मैडम, Yes, sir. Yes, मैं definitely. एक बात Definitely, कहूंगा you can speak. Yes, वुमेन sir. के लिए, वुमेन इज अ सेकंड नेम ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब सर्विस भी करनी, शी इज समथिंग आल्सो बिग दैट जॉब एज कंपेयर टू। फिर भी आदमी जो है दे ट्राई टू डोमिनेट, बट दे शुड नॉट, दे शुड गिव द फुल रिस्पेक्ट टू द लेडीज एटलीस्ट। ये मैं सबको यही कहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच सभी का लेक्चर। We can take one or two more questions from the students if they want to. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Sure. थैंक यू परमजीत मैडम। Ma'am, till then, when students will ask the question, I want to ask one question from you. Ma'am, what is gender mainstreaming? How do you see the gender mainstreaming? Come again. I couldn't follow your question. Ma'am, what is gender mainstreaming? Gender mainstreaming. Mainstreaming. In mainstream. Yes, ma'am. Yes. Gender in Well, mainstream. I think now in all the fields, women have come forward and they have proven their mettle. And as far as the gender, you see, when you come to a same platform where a man is working and a woman is working, then I don't think there is any difference. Should not be any difference between male and female. But I'm into business. I have been into business from past 30 years, and I have realized it's a beautiful equation to work with men. They understand you well, and as long as you know to be in equal to them, like you, it's a beautiful equation. I rather found better position to work with a man than a woman. You see, it's such a beautiful, भगवान ने ऐसे नहीं बनाया, इतना खूबसूरत। We have to complement each other and we have to understand. But जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, सेक्रीफाइस जरूर करना चाहिए क्योंकि कुदरत ने ही आपको ऐसा बनाया है। बट एट द सेम टाइम नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग रॉन्ग। जहां आपको लगे कि ये सेक्रीफाइसिंग के वर्थ नहीं है, यू शुड बी बोल्ड इनफ to put your foot down and explain. Instead of reacting in a violent way, you have to react in the positive way to make somebody positive about it.
तो मेरे तो ये है कि आप अगर, जैसे मैं क्वालिफाइड एज MA BEd ऑल्सो, हमें टीचिंग में ये सिखाया गया था कि अगर बच्चे आपके हिसाब से जवाब नहीं दे रहे हैं तो गलती आप में है। आप अपने सवाल बदलिए और उनको मोटिवेट करिए कि आपके जो जवाब आप चाहते हैं उनसे आए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ये आदमी को लेना चाहिए। पर एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा है, अगर SOS मरने और मतलब ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे यू पुश टू द वॉल, देन नेवर टेक अ वुमन फॉर ग्रांटेड, नेवर टेक अ वुमन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि वो पहली बात वो कदम उठाती नहीं है, अगर उसने उठा लिया है तो किसी बात की इंतहा तो हो ही गई है, ये मान के चलिए। तो मेरे हिसाब से इन द वर्क फील्ड तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है। थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for keep answering. Okay, any other question from student side or faculty members? Okay. Good afternoon, ma'am. Yes. Good afternoon, Sneha. Yes. I am Sneha Delu from Department of Laws, Assistant Professor. I wanted to share one of the things to this group, maybe. What I have read when I was reading women laws or maybe gender justice in particular, what we read was that when you talk about male and female, a male or a female is born, but a man or a woman is made. So gender is not what you get by birth. You get sex inscription by birth, but you are either made a male, either made a man by the society, or you are turned into a woman by society. So it is how your upbringing goes up, how your surroundings, support you or inculcate things around you which turn you into a woman. So rather than seeing, like one of our students also had a question that is feminism a bad thing or a good thing? But I don't think so, that we need to see things like disadvantages or advantages of feminism, because when we read feminism, in depth, feminism only talks about equality between both the genders. Feminism is never ever have talked about pushing the other gender and bring up its own title at the front track. Feminism has always wanted to just support women and bring women forward, not to push man backwards. So feminism is just about rejecting patriarchy as an institution, but not establishing patriarchy. So I want ma'am to also, Madhubala ma'am to also contribute something regarding how a woman or a girl is inscribed as a girl, like this kind of a manner, if we want to discuss gender justice in particular. Sneha, I really admire your, you have very beautifully put your, this is this thing of putting your point, that upbringing makes you feel you are a woman or you are a man. And I mean, the feminism come because you have been more taken care and you feel that you are very frail, and also this is the parents' contribution. And the environment contribution. But I think, Sneha, if we are, even in the law, आपने देखा होगा fair sex is always given, fair chance. And there is automatically, there's a soft corner for the women in law also. So, and at the same time, with due course of time and interacting with men so much, I have come across certain male and, those people, those who have undergone a tremendous torture by a woman, by the feminism, because there the feminism
is basically by realizing their rights, they are dominating and trying to take advantage of their fair sex. So मेरे ख्याल से स्नेह ये बहुत अच्छा है, अपब्रिंगिंग तो होनी ही चाहिए। जैसा कि एक लड़की को प्यार से मोहब्बत से, आप वैसे ही देखिए ना, एक डेलिकेट कोई चीज है जो भगवान ने कुदरत ने दी है, खूबसूरत चीज है जो बड़ी प्यारी सी है, आप देखिए एक आपका अप्रोच ही चेंज हो जाता है टुवर्ड्स अ लड़की एंड टुवर्ड्स अ लड़का when जैसे ही पैदा होता है। आई हैव सीन men changing when they are blessed with a daughter, उनका सारा टोन ही चेंज हो जाता है, सारा उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये तो कुदरत है। पॉइंट इज दिस, बट एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो सीन दैट सर्टेन फैमिली जहां पे उन्होंने लड़की को बहुत वैल्यू कि नहीं तुम भी लड़के से कम नहीं हो, और लड़का तो खैर मान के ही चलता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तो आप उसके अंदर ये हुआ है कि द रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज ब्रदर्स और एज कंपेनियन और एज, वो रिस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, हमें एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना है। हम वहां पे एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने लिबरलाइजेशन में हम आगे अपना झंडा लेके चलते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम किसी के ऊपर जाति तो नहीं कर रहे, क्या हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज को खो रहे हैं। तो हमें अपने ह्यूमन वैल्यूज को लेते हुए आगे बढ़ना है। तो हम एज ए ह्यूमन, एज वी आर टॉलरेंट, we are blessed because we have more power to understand. We are compared with earth, mother earth, so and you know the environment, so we have to enjoy the bliss and be good to others. मैंने देखा है positivity and hope should not be given up ever in your life. If you are positive, you can make your environment positive and you can make your environment react to according to your positivity. मेरी ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, और मैं इसीलिए चाहूंगी अपना ओरा आप पॉजिटिव रखिए। आप जहां बैठे, गलत आदमी भी सही हो जाते हैं। मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप कहोगे ये शायद आप पता नहीं अलग ही बात करिए, पर मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है कि एक रात को मैं लेट हो गई, मैं बहुत यंग थी, I was just 35 kilos and about I think about 22 years old, and मैं पहाड़गंज जैसी जगह में I got stuck and I had to come to South Delhi. बस नहीं मिल रही, स्कूटर नहीं मिल रहा, तब ये ट्रेनें मतलब ये जो मेट्रो शेट्रो नहीं होता था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने एक लिफ्ट मांगी तो कोशिश ये करी कि ऐसी जगह लिफ्ट लूं कि कूदना पड़े तो कूद जाऊं। मैंने एक कोई ऑटो उसमें जा रहा था अपना टू व्हीलर में, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या मुझे, तो उसने देखा मेरे को और मेरे को फट से लिफ्ट दे दिया। पर मेरा बिहेवियर इतना अपराइट था, पता नहीं क्या हुआ उसको, कहता आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे हॉस्कस जाना है। तो उसने थोड़ी दूर चला, पता कहता नहीं मैं ना उधर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ऐसी जगह छोड़ देता हूं जहां से आप, और उसके पहले उसका अप्रोच। तो आप पॉजिटिव हैं, आप अगर अच्छे इंसान हैं, दुनिया अच्छी है। ये मेरे हर जगह एक्सपीरियंस रहा है, मुझे आज तक कभी कोई आदमी बुरा नहीं मिला। आई थिंक या तो मैं ब्लेस्ड हूं या मेरी पॉजिटिविटी मेरे काम आती है। स्नेहा। Definitely, ma'am. I agree about this. But can we say after this that ये women equality और gender justice में सिर्फ women rights की बात करने की बजाय हमें other people, specifically the male people, हमें men के rights को as human beings भी नहीं भूलना चाहिए, because we have been moving forward with the flag of feminism and women rights so much that sometimes their rights may be like violated when you talk about cases like domestic violence and cruelty. So sometimes we have instances, many movies are also made on it, jahan pe females in, you know, under the veil of this delicate and soft and very innocent nature, they are trying to shield themselves and also, you know, violating somebody else's right. So me as a lawyer or maybe a teacher of law, I would suggest that we need to work on those aspects also through amendments or maybe legislations. That's all, ma'am. I agree with you.
Thank you very much, Madhubala ma'am and Sneha ma'am. Now I want to ask one question that comes in chat box from one our, I think, faculty member, Dr. K.M. Aarti. The question is, how women empowerment and gender equality correlated? How women empowerment and gender equality correlated? Please, Madhubala ma'am. Should I or answer Preeti or ma'am. is Preeti answering? Yes, definitely, ma'am, definitely. Great. Okay. Gender equality and your women rights. Am I right? Yes, ma'am, yes. Gender equality Empowerment. and women empowerment. Empowerment of Yes. gender equality, women empowerment. देखिए, Yes. women empower होगी तभी उसको समझ में आएगा कि gender equality तो है. अगर उसको अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे, बिकॉज फॉर मेल एंड फीमेल, फेमिनाइन और मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, सब लॉ सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है. और हर तरीके से अगर आपको पता है कि आपका ये राइट है और आप जा सकती हैं, अपने राइट को आप एक्सेस कर सकती हैं, तो वो एम्पावरमेंट की जरूरत है. लेडीज को पता हो ये कि उनके राइट्स क्या. कई दफा क्या होता है कि वो लेडीज अपने, या जो विमेन है, वो अपने राइट्स एक्सेस इसलिए नहीं कर पाती हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या मैं किस हद तक जा सकती हूँ. जैसे कि जब मेरा सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक लड़ा था, तो उस टाइम मुझे पता था, बिकॉज दैट वाज माय हार्ड अर्न मनी, एंड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग वर्किंग दिस थिंग, आई picked up a very beautiful car with all passion and everything, and I found that I've been taken for granted. Because anyhow, I had my education to myself, and I also knew that I can go ahead with my rights. So I was already empowered, and of course, as just Preeti ji, family also plays a very big role in helping. They come into support of you for right thing. So I think हमें इस चीज को we basically complement. Basically, empowerment is important to access your rights. You should know what you can do and what you cannot do. I think they both complement each other. मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो सिर्फ जानना जरूरी नहीं है कि वुमेन्स के राइट्स क्या होते हैं या ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उनको एक्सेस करने की हिम्मत भी होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि कहीं गलत होता है, कुछ भी गलत होता है, चलो हस्बैंड पीटता है, ये करता है, वो करता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम पुलिस में फरियाद करेंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन हम नहीं करते हैं. तो वो भी एम्पावरमेंट का ही हिस्सा है. सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसको अपने अधिकारों को एक्सेस भी करना होता है. तो ये दोनों चीजें एम्पावरमेंट में आती हैं. Thank you so much, ma'am. You answered very well. इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी. हमारे अंदर एम्पावरमेंट के साथ साथ में एक बैलेंस अप्रोच बहुत जरूरी है. बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, बिकॉज देखिए, एक तो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता आदमी, और दूसरा बढ़ता है किसी के कंधे को लेकर. मैंने देखा है आजकल यूएस में भी, यूरोप में भी, और अब तो इंडिया में भी है कि एक औरत अगर वो जानती है कि वो औरत है and she can put anybody, तो मोस्टली जो CEOs हैं, जो आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े हैं, उनको वो लोग, जैसे मी टू शुरू हुआ था, पॉइंट इज दिस, उसके अंदर ये होता है कि हम अपने उस वक्त तो बहुत लाइमलाइट में चले जाते हैं, बट आपको पता है कि उस टाइम ऐसा एक माहौल बन गया था जहां पे औरतों को जॉब्स देना बंद कर दिया था. यूएस में जो बड़े बड़े जो CEOs और जो अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं, उनको ऐसी लड़कियों ने, उनको वो दे हैड टू लीव देयर जॉब बिकॉज दे वर इंपॉर्टेंट पीपल एंड दे कुड नॉट bring bad name for their organization. For God's sake, we are women, we are not there, we are there to help else to know our empowerment. गलत ढंग से नहीं होनी चाहिए. As I said,
we are compared with Mother Earth, we are compared with Mother Nature. Please, हम as a woman, मैं सब औरतों को, सब लेडीज को हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, प्लीज अपने राइट्स को गलत ढंग से मत यूज करिए. राइट्स आपके पास सब कुछ है, सारे राइट्स हैं. Thank you so much, ma'am. It is an important message to all the females in the world, actually. यही बात है कि अधिकार के लिए अपने अधिकार जानो और अधिकार का सही इस्तेमाल भी करो. Yes, misuse. यहाँ सही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस्तेमाल भी करो. हाँ, वैसे डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ही झूठे केस भी होते हैं, लेडीज करती हैं, कई जगह पे होता है, ये भी होता है. ये नहीं होना चाहिए. उसको एम्पावरमेंट नहीं कह सकते हम, उसको गलत इस्तेमाल कहा जाता है अधिकार का. जैसे कोई मेल अत्याचार करता है तो उसको गलत कहा जाता है, वैसे ही अगर कोई फीमेल है वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है, कानून का गलत इस्तेमाल करती है, वो भी गलत ही है. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली वो भी गलत है. Good afternoon, ma'am. Ma'am, according to you, what is the role of men in the gender equality? मतलब हम हमेशा women के role की बात करते हैं. We never talk about the role of men. So, what is the role of men in the gender equality? कि उनका भी कोई रोल होना चाहिए जिन जेंडर इक्वालिटी की सिर्फ हमेशा women का ही रोल होना चाहिए. जैसे मैंने बताया, मैंने अपने लेक्चर में भी कहा था कि मेल का, सिर्फ मेल का ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरी सोसाइटी का रोल होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी में. और जेंडर इक्वालिटी में सिर्फ फीमेल नहीं आती, मेल भी आते हैं, सारे लोग आते हैं. ह्यूमन इक्वालिटी की बात करते हैं हम, यानी सारे ह्यूमन के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर देखा जाए तो परिवार में अगर बड़े भाई या भैया है या फादर है, वो अगर फीमेल को सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है. वो मेल के रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई फीमेल को आगे बढ़ाने की या जेंडर इक्वालिटी में इक्वल करने की. अगर घर में सास है या मम्मी है या दादी है, वो कहती है नहीं बेटा तू लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती, ये मत करो, ये नहीं करो, तो वो फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जेंडर इक्वालिटी के लिए. यानी पूरी सोसाइटी की ह्यूमन इक्वालिटी की बात हम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. सही है? श्योर. सर, व्हाट इज, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे कि मेन का क्या रोल होना चाहिए इन द जेंडर इक्वालिटी? अरुण सर, Should I answer it? Hello. Yes sir, you are audible sir. जेंडर इक्वलिटी में इक्वल रोल है वुमेन और मेन के. अगर वुमेन का राइट है तो ड्यूटीज भी हैं, ऐसे ही अगर मेंस के राइट है तो उनकी ड्यूटी भी है. अगर हम अपने राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस कर सकते हैं तो ये हम किसी इक्वलिटी को मेंटेन कर. एक तराजू है, उसके दो पलड़े हैं, उसमें इक्वलिटी को हमें ऐसे नापना है. ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेंडर इक्वलिटी के लिए, मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे को मान सम्मान देने के लिए, एक दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर मेरे राइट्स को कोई वुमेन अगर हार्म करेगी तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा. ऐसे ही अगर वुमेन्स के राइट को कोई मैन हार्म करेगा तो शी शुड प्रोटेक्ट इट. आई थिंक दिस इज अ वैलिड आंसर फॉर योर क्वेश्चन. थैंक यू. we can say that कि 50-50% शेयर होना चाहिए women and men. हाँ जी 50-50 शेयर होना हाँ, चाहिए. सबका 50-50 शेयर होना चाहिए. और जो भी कोई एक गिरता है तो उसको दूसरे को उठाना चाहिए. Yes ma'am, yeah. No ratio. According to me, there is no ratio. Can I? हाँ. Yeah, There is no ratio. The only thing that you must respect each other,
and you must Exactly. like not just because you are a woman or you are a man. I think प्रीति जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि we should talk as human beings. एंड ये कहना कि ये औरत है आदमी है, आई थिंक जो घर में नॉर्मली मैंने जैसा पहले कहा था कि जो मेल होते हैं वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं व्हेन दे हैव अ डॉटर इन देयर हाउस, बट एट द सेम टाइम टू टेल समबडी टू रिस्पेक्ट, वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी मस्ट हैव गुंजाइश. गुंजाइश मींस अंदर उतनी कि एक दूसरे को आप just because you have energy उसका समाधान जबरदस्ती you can enforce your this thing. So I think सम्मान करें, उनकी बात का सम्मान करें. हाँ. करें. हाँ जी. कंसीडर करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करके उनको सम्मान करें. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for sharing your views. Thank you, ma'am and sir. Definitely, everybody should know his or her responsibility, and definitely हर एक की respect होनी चाहिए और सम्मान जो है वो equal रहना चाहिए. So, any other question from anybody? Excuse me. Yes, ma'am. Yes, sure. Myself, Dr. Inderpreet Kaur. Yes, ma'am. I want to share my views. And yes, ma'am. First of all, I want to thanks to everyone who is present here, and special thanks to Dr. Arun Kumar ji, Ms. Madhubala ji, and Preeti Pandya. I'm really thankful to you, and you accepted my invitation to join us on this webinar, and you are sharing so much time with us and your great experience with us, which is very inspiring to us. Very inspirational webinar is this, and very motivational. I really enjoyed and got many things from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Inderpreet ma'am. Thank you very much. So, any other question? Okay. So thank you so much everyone for listening this lecture and talk carefully and patiently, and so much thanks of the today's speakers, and especially Arun sir, Preeti ma'am, Madhubala ma'am. You talk very well and you answer very well all the questions. Every student and faculty member learned a lot, definitely. And I thank our principal sir and the whole team of the Faculty of Pharmacy which conducted this lecture in association with the Legal Aid Club and Women Grievance Cell. So definitely this was very informative talk, and I again especially thank the students, faculty members and everyone present here. Thank you very much, Arun sir, Madhubala ma'am, and Preeti ma'am for joining us. Thank you very much, everybody, for motivational lecture. Dr. Arun sir, Madhubala madam, and Preeti madam. Thanks very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Pooja madam, all Vice Chancellor madam, thank you. And thank you to invite me as a lecturer. Thank you. Thank you. Thank you so much.